डिस्क्रीट सिग्नल के इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर से शुरू करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में हम बात करेंगे कि हम सिग्नल को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज even and odd signals. You can classify signal as a even or odd. The second is periodic and aperiodic signal. The second one is periodic signals and aperiodic signals. The third is very important, power signal and energy signal. Third type. The fourth type of signal is known as symmetric and antisymmetric signal. The fifth classification is causal and non-causal signal. So these are the classification of signals. So some signals are random signals and deterministic signal. We will talk about, है ना. So first classification is even signal and odd signal. तो first classification से हम start करते हैं. The first classification of signal is even and odd signal. Even and odd signals. So how to define even and odd signal? I can say xt is even signal if x of minus t is equivalent to x of t. अगर किसी सिग्नल को आप टाइम के अक्रॉस फ्लिप कर दें तो सिग्नल एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है, तो दैट सिग्नल इज नोन एज इवन सिग्नल. दिस इज इवन सिग्नल, इवन फंक्शन और इवन सिग्नल. How you define odd signal? If x of minus t is equivalent to minus times of xt, then that signal is known as odd signal or odd function. Fine. So let's take some example. Example. What is example? The example for the first question is first even signal के लिए example देखें. Even. Or we can verify. Let's say I have this signal. This is my x of t. Continuous के लिए देखते हैं. This is t and I am saying my x of t is this. Can we draw x of minus t? I can draw x of minus t and x of minus t what? x of माइनस टी मीन टाइम रिवर्सल. जो 1 पे मिल रहा था वो माइनस 1 पे मिलेगा और जो माइनस 1 पे मिल रहा था 1 पे मिलेगा. तो आई कैन से फंक्शन का शेप चेंज हुआ क्या? x ऑफ माइनस टी इज इक्विवेलेंट टू x ऑफ t. तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज इवन सिग्नल. और इवन सिग्नल का एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. इवन सिग्नल के बहुत सारे एग्जांपल है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इवन एंड ऑड सिग्नल्स. इवन सिग्नल का एक एग्जांपल देखा हमने. एक और एग्जांपल देखते हैं जरा. लेट्स से एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 इज लेट्स से f of t is equivalent to
साइन ऑफ टी, लेट्स से दिस इज वन फंक्शन, और लेट्स से कोसाइन ऑफ टी, correct? So let's draw. How you can draw? This function, let's say this is t and this axis represents cosine of t. कर देते हैं ड्रा. At t equal to 0, this point represents t equal to 0, so we know that at t equal to 0 value is 1, and t equal to pi by 2, at pi by 2 value is 0. At minus pi by 2 value is also 0. So I can draw the function like this. This is pi, this is pi, this is 3 pi by 2. Okay, this is cosine of t. Now let's draw f of minus t. f of minus t will be cosine of minus t. तो cosine of minus t का ग्राफ कैसा होगा जरा देख लेते हैं. This is cosine of, or I should say this is f of minus t and this is t. Let's say इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखते हैं कि t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट तो 0 पे ही मिलेगा, तो 0 पे तो इसको 1 ही मिलने वाला है. t इक्वल टू जो माइनस पाई बाई 2 पे पॉइंट मिल रहा था वो प्लस पाई बाई 2 पे मिलेगा, तो माइनस पाई बाई 2 पे मिल रहा था, इसको 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जो प्लस पे मिल रहा था वो माइनस पे मिलने लगेगा, तो ये माइनस पे मिलने लगा. फाइन. उसके बाद जो पॉइंट मुझे मिल रहा था कहां, दिस इज x इक्वल टू, लेट्स से दिस पॉइंट इज पाई, x इक्वल टू पाई पे वैल्यू -1 मिल रही थी, अब वो -1 मुझे माइनस पाई पे मिलेगी, तो मुझे माइनस पाई पे मिलेगा कितना, -1. तो ये सिग्नल तो वैसे ही हो गया, क्योंकि देखो इसके माइनस पाई पे, इसके माइनस पाई बाई 2 पे 0, तो इसके पाई बाई 2 पे भी 0. कैन आई से f of minus pi by 2 is equivalent to f of pi by 2 because this value is 0. Now what more I can say, the value at f of pi is equivalent to f of minus pi is equivalent to -1. तो फंक्शन कैसा है कि f of minus t किसके इक्वल है, f of t के है. तो अगर मैं इसका f of minus t बनाता हूं तो मुझे सेम सिग्नल मिलेगा. आई कैन ड्रॉ दिस सिग्नल अगेन. I can get this signal again. तो I can say, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन सेम सिग्नल है. f of minus t is equivalent to ft. तो कौन सा सिग्नल हुआ ये, दिस सिग्नल इज नोन एज इवन सिग्नल. तो ऐसे सारे सिग्नल जो वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल हो, दिस सिग्नल्स आर नोन एज इवन सिग्नल. ऐसे सारे सिग्नल जो वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस कैसे हो, सिमेट्रिकल हो, नोन एज इवन सिग्नल. देखो आप इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है इसलिए सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल. और वैसे भी हम जानते हैं कि कॉस ऑफ minus theta is equivalent to cos theta. So this is sine of a even function. So cosine is a even function. Cosine कैसा function हुआ, even function हुआ. Now let's take some example for odd functions. Let's say I have one function this. This is -1, this is 1, this is 1, this is -1, this function is x of t and this function, this is t. Let's say we want to know whether this function is even function or odd function. तो जरा देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल. odd function का एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, तो जरा देखते हैं ये even है या odd है. Let's draw x of minus t. तो अगर मैं x ऑफ माइनस टी ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा जरा देखते हैं. वी आर ड्रॉइंग व्हाट, x ऑफ माइनस टी एंड दिस इज t. सो आई कैन से जो वैल्यू मुझे मिल रहा था, जैसे ये इस लाइन का ये जो वैल्यू है ये मिल रहा था मुझे कहां, ये मिल रहा था 0 से 1 इंटरवल के बीच में. तो जो 0 से 1 इंटरवल के बीच में मिल रहा था वो मिलेगा मुझे 0 to
-1 इंटरवल के बीच में। ये जो पूरा फंक्शन है, क्योंकि -t कर दिया तो यहां माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मिलेगा मुझे कहां, 0 to -1 इंटरवल में। तो कैन आई से दिस फंक्शन विल बी t इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना है इसका 1, तो t इक्वल टू माइनस पे वैल्यू हो जाएगा इसका 1, और t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है। तो दिस इज द फंक्शन। x ऑफ -t ड्रॉ कर रहे हैं, और जो वैल्यू मिल रहा था मुझे 0 से -1 के बीच में, तो जो -1 का था प्रोजेक्शन 1 पे आ जाएगा। तो 1 पे कितना वैल्यू है, 1 पे आ जाएगा इसका वैल्यू, आई कैन से दैट ओके दिस वैल्यू इज -1। देखो 1 पे, -1 पे जो मिल रहा था वो +1 पे मिलेगा। एंड नाउ दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा हुआ, x ऑफ -t। सो आई कैन से x ऑफ -t इज माइनस टाइम्स ऑफ xt, या मैं ऐसा लिख दूं कि x ऑफ t इज इक्वलेंट टू माइनस टाइम्स ऑफ x ऑफ -t। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस फंक्शन बाय माइनस। दिस वैल्यू इज +1 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब फंक्शन के बाहर अगर मैंने माइनस लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो उल्टा कर देंगे। तो कर देते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, और इन दिस केस इट्स अ स्लोप। तो आई कैन से माय वन मोर फंक्शन इज माइनस टाइम्स ऑफ x ऑफ -t, और दिस इज t। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑड। तो जो 1 था वो -1 बना दूंगा, और जो -1 था वो कहां चला जाएगा, +1। क्या ये दोनों फंक्शन एक जैसे दिखते हैं? अगर ये दोनों फंक्शन एक जैसे दिखते हैं, दिस मींस दिस फंक्शन इज ऑड इन नेचर। तो ऐसे सारे फंक्शन जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, दिस फंक्शंस आर नोन एज ऑड फंक्शन। ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे। सो दिस फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। ध्यान रखें, जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, दिस फंक्शंस आर नोन एज ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। नाउ let's take one more example, and one more example is f of t is equivalent to sine of t. Let's say this is my function and I want to know this function is even or odd. तो जरा ड्रॉ करते हैं। This is my function. So on vertical axis I am drawing sine t, and horizontal axis it's a t. So I can draw this function. This is 0, pi, 2 pi, this is pi by 2, this is minus pi by 2, this is pi, minus pi, this is minus 3 pi by 2, and this is minus of 2 pi. Fine. This function is sine t. Now I am interested in sine of minus t. तो sine of minus t कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो वैल्यू मिल रहा था मुझे -π/2 पे, वो मुझे मिलेगा +π/2 पे। तो +π/2 पे ये +π/2, फिर जो -π पे मिल रहा था वो वैल्यू मिलेगा +π पे, जो π/2 पे मिल रहा था वो मुझे मिलेगा -π/2 पे, और जो +π पे मिल रहा था वो मिलेगा मुझे कहां, -π पे। कैन आई ड्रॉ दिस फंक्शन? यस। मतलब मुझे क्या करना है, ये पूरा पोर्शन इधर ड्रॉ करना है और ये पूरा पोर्शन इधर ड्रॉ करना है। दिस मीन्स टाइम रिवर्सल। सो आई कैन से दिस पोर्शन विल बी दिस, और ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, आई कैन ड्रॉ दिस पोर्शन, दिस इज -π, दिस इज -π/2, ये फंक्शन। अब क्या किया जाए कि a function can be said, a function is said to be odd function if
एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ एफ टी, तो मैं इस माइनस का यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर इस माइनस का यहां मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन कैसा बनेगा? नाउ आई एम ड्रॉइंग माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस टी। तो जो नेगेटिव पोर्शन था -1, ये +1, तो जो -1 है वो +1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स दिस इज साइन इज हैविंग +1 एंड -1 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सो ये -1 +1 पे शिफ्ट होगा, तो फंक्शन फिर ऐसा बन जाएगा। देखो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? यस, ये सेम है। तो साइन कौन सा फंक्शन हुआ? साइन इज ए ऑड फंक्शन। तो एनी फंक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस इज नोन एज ऑड फंक्शन। इस फंक्शन का वैल्यू कैसा हुआ? ऑड फंक्शन। सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इवन एंड ऑड सिग्नल्स। वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज what is multiplication of this two? Even into even signal. Second point is even into odd. Third point is odd into odd. Fourth point is even plus minus even. Fifth point is even plus odd. Sixth point is odd plus odd, plus minus. And seventh point is what about DC? चलो बात करते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो कोई अज्यूम कर लो आप फंक्शन, लेट्स से इवन फंक्शन के नहीं से one even function is f of t is equivalent to t to the power 2n। ये इवन फंक्शन है, n का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कितना हुआ? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। सो आई कैन से दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन because let's say n equal to 1. I am taking even function as e to the power ft equal to t square, and I am taking one odd function. So what is odd function? e to the power t to the power 2n plus 1, क्योंकि यहां f of minus t f of t के इक्वल है, तो मैं लिख देता हूं t, because f of minus t is minus t, so f of minus t is minus times of ft, that's why this function is known as odd function। तो यहां t का कोई भी इवन पावर हो या ऑड t नीचे वाले t का कोई ऑड पावर हो, तो ये फंक्शन कैसे होंगे? इवन एंड ऑड फंक्शंस होंगे। ये आप कोई भी ले सकते हो, साइन कोसाइन जो भी ले सकते हो, तो इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन मीन्स टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इट्स t to the power 4। t to the power 4 हुआ तो f of minus t is equivalent to f of t, so this is even function into even function is equivalent to even function। what is even function into odd function? So t square multiplied by t, it's a t cube, so f of minus t is equivalent to minus times of ft, that's why this function is odd function। let's say what is odd into odd? So t into t is t square, so f of minus t is equivalent to ft, so this function is known as even function, है ना। तो ध्यान रखें, ये मेरे पास क्या सेटिस्फाई करता है? f of t is equivalent to f of minus t, ये सेटिस्फाई करता है f of minus t is equivalent to minus times of ft, एंड ये सेटिस्फाई करता है f of minus t is equivalent to f of t, that's why even। now what is even plus even? Let's say t raised to the power 2 plus t raised to the power 4. Let's say we are having this two function, even plus even, so I am interested in t raised to the power 4 plus t raised to the power 2। ये दो इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? f of minus t is equivalent to ft, दोनों की स्क्वायर पावर इवन है, तो फिर f of minus t is equivalent to ft। I can say f of minus t is equivalent to ft, so I can say these signals are even in nature। okay, even plus odd, so let's take t plus t square। अब f of minus t कितना होगा? f of minus t is equivalent to minus t plus t square। तो ये तो किसी भी तरीके से इसके बराबर नहीं होता, तो इसको हम ना इवन बोल सकते हैं ना ऑड बोल सकते हैं ना।
नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, ये मिलके कोई ऐसा नहीं बनता। ऑड प्लस ऑड, सो आई कैन से टी क्यूब प्लस टी क्यूब या टी क्यूब प्लस टी। सो टी क्यूब, इस बीच वाले ऑपरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बीच वाले ऑपरेटर से क्या फर्क पड़ता है, नथिंग। सो टी क्यूब प्लस टी, दोनों ऑड सिग्नल है, तो दोनों ऑड सिग्नल में एफ ऑफ माइनस टी किया तो माइनस टाइम्स ऑफ एफ टी लिख सकते हो, तो दोनों का एडिशन कितना होगा या सब्सट्रैक्शन कितना होगा, ऑड सिग्नल होगा। डीसी, डीसी इज इक्वल टू 1, 1 is symmetrical about vertical axis, that's why this signal is known as even signal. Now next is you can find division also, और डिवीजन का भी तरीका यही है, मतलब आप कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखें इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, इवन प्लस ऑड, सारा कुछ कर सकते हैं। लेट्स से व्हाट इज इवन डिवाइडेड बाय इवन, सो लेट्स से वन इवन फंक्शन इज साइन टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, दोनों इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के इक्वल होगा, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन। नाउ व्हाट इज इवन डिवाइडेड बाय ऑड, so I can say no, even divided by even means cos t divided by t square. Now this is even divided by even, so I can say that this function is what, this function is f of, this is even in nature, f of minus t is equivalent to cos t, minus t is also t square, even function, even divided by odd, so I can say even function is cos t divided by t, so अगर माइनस टी किया तो ये तो कंपनसेट कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, तो रेशियो क्या होगा, ऑड डिवाइडेड बाय इवन, ये भी कैसा होगा, ऑड, अरे इसको उल्टा कर दोगे तो कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, और वन मोर इज ऑड डिवाइडेड बाय ऑड डिवाइडेड बाय ऑड इज साइन टी डिवाइडेड बाय टी, साइन टी डिवाइडेड बाय टी इज व्हाट, दोनों माइनस कैंसल, सो इट्स इवन फंक्शन। तो ये सारी आप ध्यान रखें, बेसिक पॉइंट्स है, और बेसिक पॉइंट्स को भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे याद करेंगे सारे फंक्शंस को, टी स्क्वायर ऐसे याद कर लें, आपको समझ में आता है कि टी की पावर इवन इज इवन फंक्शन एंड टी की पावर ऑड इज ऑड फंक्शन, सो यू कैन कैलकुलेट दिस पॉइंट्स।